कर रहा हूँ। جی हुज़ैफ़ा। حذیفہ جی بھائی بولیے السلام علیکم. वालेकुम सलाम। ये आपका नंबर मेरे को भेजा है हामिद भाई ने। جی 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 तो उन्होंने करसी की किसी इबारत का पेज भेजा है मुझे جی جی ऑनलाइन। جی جی तो उसमें रिकॉर्डिंग आपकी है। نہیں نہیں میرے نہیں ہے صاحب. तो वो पेज आपने भेजा, आपका भेजा हुआ है। ہاں وہ گروپ میں آیا تھا تو میں نے بھیجا اصول کرکی کا جو پیج ہے اس میں. हाँ, उसमें वो ہاں लिखا हुआ है कि हर वो आयत जो अइम्मा جی جی अहनाफ के कौल के खिलाफ हो। جی 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 ये आपका भेजा हुआ है। نہیں 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 ہاں یہ بول تو کوئی دوسرے کی وجہ سے اس نے بھیجا تھا. अच्छा, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। جی 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 آگے فارورڈ کرا کیونکہ اصول کرکی کی عبارت تو ہے نا صاحب. हाँ, उसूल करके की इबारत है, उसमें ہاں कोई दो राय नहीं है। جی جی इबारत भी बिल्कुल सही है, उसमें جی भी कोई दो राय नहीं, ठीक है। جی جی अब मुझे इससे बात ये करना है, मैं तो एक इनसे बात कर रहा था, उन्होंने आपका नंबर मुझे फॉरवर्ड किया। جی 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 حذیفہ بھائی तो بولیے. मैं तो कोशिश ये कर रहा था कि वही बात करे, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। अब جی उन्होंने جی आपसे جی तो मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि جی आपने جی भी इसको फॉरवर्ड किया है। جی 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 इसमें जो इबारत है इस किताब के अंदर جی جی कि جی हर वो आयत जो अइम्मा अहनाफ के कौल के खिलाफ हो, جی उसे جی तर्दीह या तावील पर मामूल किया जाए। جی جی तो इस इबारत में आपको क्या कोई एतराज है, या ये इबारत समझ में नहीं پورے आई। اعتراض کا مربع ہے نا صاحب. کئی کو जी کرتے صاحب ایسا آیت کو جو سو منسوخ وہ اس میں تعویذ کریں گے, حدیث میں جو سو یہ کریں گے, ایسے اصول کیوں بنائے گئے؟ یہ اصول جی کرکی کی جو عبارت ہے جی تو اس میں آپ کو کچھ برائی نہیں لگتی؟ نہیں، میں آپ سے پوچھا، آپ کو برائی لگ رہی ہے نا۔ بالکل برائی کا مجمع ہے صاحب وہ عبارت. جی حنفی آج وہی اصول پہ ہے حنفی پورے. ہاں، میں بھی حنفی ہوں جی الحمدللہ۔ جی اچھی بات ہے. آپ بھی اس کے یعنی اس کو ماننے والے ہیں سمجھو, کوئی بھی آیا تھا تو اس کو تعویل کریں گے. جی 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 اصل اچھا میں مجھے آپ یہ بتائیے، کیا قرآن میں نسخ ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا بولے صاحب؟ قرآن کے اندر نسخ ہوا ہے کہ نہیں؟ نصب ہوگا. یہاں پہ لکھا ہے نا، خلاف ہو اسے جی نسخ، جی ترجیح یا تعویل پر معمول کیا جائے گا۔ جی جی تو کیا قرآن کے اندر کسی مسئلے پر دو آیتیں نازل ہوئی ہو، جس جی میں جی سے ایک آیت منسوخ ہو گئی ہو، اسی جی ناسخ جی کو ایسا تو ہوا ہے اللہ کہ اس سے بہتر آیت دے دیتا نا قرآن میں, پھر تم کہیں کو منسوخ کرتے صاحب اس کو. ہاں اس کو تو ظاہر اللہ ہے، ہی منسوخ کرا نا. ہاں اس کو اللہ نے منسوخ کیا، برابر۔ بالکل نا. تو یہاں تو پر ہم بھی اس کے بہتر میں آپ کو کوئی چیز دیتے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہو بات, تو اس سے تو بہتر یہاں کوئی آیت تو نصیب یہاں کی. پر اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب ادھر کو وہ ایک بات سنیے حذیفہ بھائی. جی حنفی علماء اکرام ایک چیز لکھتے, پھر اس کے بعد آنے والے پھر جو سو اس کی الگ تعویل کرتے, پھر آپ کے بعد آنے والے پھر آپ کے یہ کریں گے. میں بولتا ہوں ایسی چیزیں لکھتے ہی کئی کو ہیں آپ لوگ جی، آپ نے جس یہ کو. کہاں سے بول دیا؟ یہ جو کتاب لکھی ہے اصول جی جی کرفی ہے، جی جی یہ یہ جو آپ نے اصول ہے, پیش فقہ کیا ہے، احناف کے اصول ہے. دیکھیے ہاں آپ اس میں سے آپ ہے، کے اصولوں گمن میں صاحب سے کیا ہے۔ بولتے, آپ کے گمن صاحب کیا بولتے, یہ جو اصول کرکی کی عبارت ہے بالکل صحیح ہے بولے. بالکل صحیح، قرآن کی اسی لیے اگر کہتا سے ہوں۔ کوئی آیت واضح بھی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے بولتے. حدیث بھی تو آج حنفیوں کا عمل پورا وہی ہے, تو آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے, لہٰذا آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینس کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہاں لکھی ہے جی جی نا، یہ ان لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، ہاں یا جی. یا یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے اندر صرف کر دی کہ وہ قرآن کی ایک ایک آیت، اچھا ایک ایک صاحب مجھے بتائیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کون سی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی جو انہوں اب اتنا. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، یہ دوسرا ٹاپک ہو گیا، اس پہ نہیں ہم بھائی بعد اس میں۔ سے ریلیٹڈ ہے نا, جب انہوں منسوخ کر رہے تو ان کو علم ہونا چاہیے نا. ہاں ہاں ہاں، دیکھیے ایک شخص مستعد بنتا ہے, میری بات سنیے حذیفہ بھائی, ایک اچھا مستعد آپ بنتا. مستعد مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں میں وہی آپ سے سوال کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ بتاتے جائیے, میں مانتا جاؤں گا, کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. مستعد بننے کے لیے انسان کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، یعنی قرآن کیا منسوخ کر رہا, حدیث کیا منسوخ کر رہی ہے, علم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہے نا، اچھا اچھی بات ہے. اگر سے یہ علم نہیں ہو تو ناسخ اور منسوخ کا مستعد بن سکتا ہو ہی نہیں نہیں بن سکتا، سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بن سکتا۔ اچھا یہ بتائیے مجھے, کیا نماز میں سورہ فاتحہ انسان کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور دیکھو اب میں کہہ رہا ہوں نا، اب یہ مسائل نکلتے جائیں گے۔ نہیں صاحب منسوخ ہے بول رہے, وہ قرآن سے کون سورہ منسوخ بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بہت ہمارا سارے بھی رفع دین منسوخ ہے بول رہے. نہیں نہیں نہیں، ہم بھی یہ کہ لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ لا، کیا بولے؟ لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ لا۔ نہیں آپ حدیث غلط پڑھ رہے مول صاحب, حذیفہ صاحب. آپ صحیح پڑھ کے لا سنا دیں۔ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, آپ کیا پڑھ رہے؟ ایک ہی حدیث ہے اور ہاں الفاظ نہیں حدیث کے۔
हाँ नहीं, क्या पढ़े आप बोलिए, मेरे को समझ नहीं आया। ला सलाता लिमन ला फातिहा तला, ये हदीस नहीं है? हाँ जी जी जी, ये हदीस। और ला सलाता लिमन लम यक़रा इल्ला बिफातिहातिल किताब, ये भी हदीस है। और जी ये जी भी जी हदीस जी का जी मैं जी जी, पढ़ा हूँ, हदीस तो के अल्फाज बोल रहे कि मुंह में, जी जी जी, मैं मान लिया ये हाँ उबादा ठीक इब्न है, ये साबित हदीस रज़ी है। अल्लाह ताला से, हाँ ये फजर तो के ये नमाज मैं के मानता हूँ। तो हाँ, ये लोग मैं बोल रहे, मानता हूँ। मेरी बात सुनिए ना साहब, लोग बोल रहे हैं हमारे इमाम साहब मनसूख करे, मुंह में अंगार के ढेले पड़े जाएंगे, फर्ज नमाज लोगों की, या जो सो फर्ज नमाज में जो अल्लाह के रसूल बोले कि तुम मेरे पीछे, उनके ऊपर खिरत भारी हो रही थी फजर की नमाज में, मेरे साहब तुम मेरे पीछे पढ़ रहे हो। हाँ बोले अल्लाह के रसूल हम पढ़ते हैं, ला मत पढ़ो, ला सलात अली मल्लम इकरा भी फातिहतिल किताब, सिर्फ फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं होती। मानते हैं ना आप ये हदीस को? फिर अवाम क्या बोल रही है, हनफी अवाम जो कामिल में आपके लोग आए कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, खामोश ठहर जाना बोल रहे, ये क्या है? बिल्कुल पढ़ना नहीं, ऐसा किसने कह दिया? बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप इमाम के मसला पीछे सुने जहरी नहीं? और सिर्री नमाज में, कहीं में जहरी में पढ़ना, सिर्री में नहीं पढ़ना। अच्छा, ये जो मसला है इमाम के पीछे किरात या किरात इमाम के पीछे नहीं साहब, या फातिहा बिल किरात, या देखिए, फातिहा बिल किरात, जो मसला मुझे बताइए, ये औला गैर औला का मसला है या नमाज के होने न होने का मसला है? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, ला ये तो अल्लाह के रसूल ने नहीं, और भी कुछ बोला ना। देखिए मेरी समझ क्या है, क्या बोला आप बताइए। अल्लाह के रसूल बोल रहे ला सलाता, अभी आपने कहा, अभी जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे साहब, हाँ। ठीक है, इमाम के पीछे भी नहीं पढ़ रहे, जो अपनी जहरी नमाज है, सिर्री हाँ। में भी क्या कर रहे कि अल्लाह आलम, 2 रकात में सिर्री में भी नहीं पढ़ते, नहीं तो पढ़ते। ये तो इसको आप कैसा आम को खास कर रहे हैं, जैसा कि ये एक हुक्म तो आम ये है भी तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है ना, क्या है, बोलिए। कि जिसने किसी शख्स को अपना इमाम बनाया जी, तो उस शख्स की, यानी उस इमाम की किरात भी मुक्तदी के लिए किरात होगी। कौन सी हदीस है साहब, थोड़ा बोलिए मुझे। मन कान लहू इमामन फक़िराअतुहु लहू, ये हदीस है। क्या है तर्जुमा? मन कहाँ है ये कान हदीस? लहू इमामुन फक़िराअतुहु लहू। बोलो ना, हाँ? हदीस नंबर बोलिए, मैं निकालता हूँ मैं इंशाल्लाह। मुझे नहीं मालूम, आप ये अच्छा हदीस नंबर, अच्छा ठीक है, और एक हदीस है, गालिबन ये हदीस खुदसी है, जिसमें प्यार रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अल्लाह के और बंदे के बीच में नमाज को आधी आधी बांट दिया है। बराबर। बंदा कहता है कि यानी प्यार रसूल ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुने ना, हामिदा हाँ अब्दी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो हदीस मालूम है मुझे। तो नमाज को सूरह फातिहा कहा गया ना साहब, हाँ नमाज को सूरह फातिहा कहा गया ना यहाँ पर, तो हाँ, तो बराबर ना, मैंने तो कहा पढ़े इनकार नहीं किया। तो फिर कैसा होती साहब? लेकिन यहाँ पर ये हदीस का क्या माना होगा, मन कौन सी कान हदीस? लहू इमामन फक़िराअतुहु लहू, ये बिल्कुल ही ना, अल्लाह के तो रसूल तुम भी के। सूरह पढ़ रहा ना, सूरह फातिहा यहाँ खास है साहब, तुम आम हुक्म दे रहे, वहाँ खीरत का है या सूरह फातिहा का है? अल्लाह के रसूल ने यही तो करते हैं आप लोग, जो घुमाने का है ना, मैं यहाँ खास दलील दे रहा हूँ आपको सूरह फातिहा की, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, खास सूरह फातिहा को वहाँ खीरत पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या मैं नाम लेके बता रहा हूँ। अरे मेरे भाई, देखिए अगर आपकी हदीस पढ़ी है उजाफा भाई, आपकी हदीस में सूरह फातिहा का जिक्र है क्या? खीरत का जिक्र है। अच्छा, सूरह फातिहा की किरात को किरात नहीं कहते क्या? नहीं, यहाँ पर प्यार रसूल ने खास सूरह फातिहा क्या, वहाँ पर खीरत क्या, जैसा कि वहीदा कुरियल कुरान की जो आयत आप फिट कर रहे, वो आम हुक्म है। बिल्कुल ये आयत, बिल्कुल ये आयत आम है, यहाँ पर खास हुक्म है ना। ये नमाज खारिज सलात है। कौन सी? यही वहीदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। इसका शान नुज़ुल तो देखो ना, साहबा नमाज में बात करते थे, सलाम करते थे। हाँ, शान नुज़ुल नमाज के मुतालिक है ना? नहीं, नमाज के कौन सा? हाँ बोलो ना। नहीं साहब, ये तो नमाज के फर्जियत से पहले की बात है ना। हाँ, तो इसके अंदर नमाज है, ये मैं जो हदीस बता रहा हूँ, खारिज सलात, ये हुक्म जो है ये सिर्फ खारिज सलात होगा या नमाज के अंदर भी लागू होगा? कौन सा? वहीदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू। अरे यहाँ खास करे ना, सूरह फातिहा पढ़ो बोल के अल्लाह के जैसे, देखिए अल्लाह ने कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, नबी करीम अरे लेकिन मेरी अल्लाह बात के सुनिए। रसूल लिमन, नहीं लिमन, अच्छा लिमन, बात पूरी लिमन पे आती है। आपको अरबी ग्रामर आता है? अब तुम्हारे होता तो नहीं आता मुल साहब, आप तो आलिम हाँ, साहब तो हैं, लिमन, अच्छा मैं घुमा नहीं रहा, हदीस अल्लाह के रसूल की बात को समझना जरूरी है कि भाई बोलने वाला बोल क्या रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई जिस शख्स ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, ठीक है, वो जो सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। अब ये जो से मुराद कौन है? नमाजी की कितनी हालत है?
नमाज या तो सारी इमाम पे हो हो, जाता है, ये हुक्म ऐसा नमाज है, सुनो कोई सुनो सुनो, नमाज नहीं। सारी पे नहीं होता। आप मुझे क्यों अब नहीं? मुझे आप खास आप करके मुझे बोलने बताइए। दीजिए। हाँ मैं जी बताता हूँ ना। जी जी यहाँ पे मन ये आम है, क्या है? जी यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने किरात नहीं की। एक हदीस तो ये भी है और एक हदीस ये भी है कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। ठीक है, जी जी यहाँ पे मन से मुराद क्या है? अब नमाजी की 3 हालत है। जी नमाजी या तो इमाम होगा, जी या मुक्तदी होगा, जी या मुनफरिद होगा। जी जी अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा कि उस मुक्तदी की नमाज नहीं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़े, या उस इमाम की नमाज नहीं सूरह फातिहा नहीं पढ़े, जी जी या उस मुनफरिद की। जी अब हम इस मसले के अंदर तदबीक ये देते हैं कि जब आदमी नमाज पे इमाम बनेगा तो वो सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और ज़म्मे सूरत भी करेगा। जी जी ठीक है, जी जी जब वो इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा होगा, मुनफरिद होगा, तो सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और ज़म्मे सूरत भी पढ़ेगा। इसलिए कि ला सलाता लिमन ला क़िराअत ला, जी वफी हदीस ला सलाता लिमन ला फातिहा ला, जी जी वफी इस्नादिन आखर ला सलाता लिमन लम यक़रा इल्ला बिफातिहातिल किताब और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जी। अलग अलग अल्फाज के साथ, अलग अलग सनदों बहुत के साथ। सारी रिवायत है। जी अब मसला आ जाता है उस शख्स का जो मुक्तदी है, जी जो मुनफरिद भी नहीं है, जो इमाम भी नहीं है। अब ऐसा शख्स क्या करे? जी जी ऐसा शख्स क्या करे जो मुक्तदी है? तो अल्लाह के रसूल का दूसरा फरमान हमारे सामने आता है कि मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुहु लहू। एकदम कोई घुमाने की बात नहीं है। अगर मैं किसी आपका बात नहीं आप मेरी बात नहीं मुकम्मल हो रही है आप, और आप समझ भी रहे हो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप घुमा रहे कैसा, मैं वो भी तो बताऊंगा ना। आपकी पूरी तकरीर नहीं हाँ ठीक है, सुनूंगा ना। मेरी पूरे सुन लो। देखिए मसला सुनिए। अच्छा ठीक है, मेरी पूरे सुन लो, और इस मसले पे हम और कभी बात कर लेंगे। अभी मैंने आपको कॉल किया है, हर वो आयत जो अभी आप कर रहे हैं ना, उसूल करकी के उसूल पे बात कर रहे हैं अपन। ये जो आप घुमा रहे हैं ना, अल्लाह के रसूल ने कहा ये खिरत है। खिरत में देखिए जुम्बी सुरा भी आ जाता है, वो जुम्बी सुरे के मुताबिक। अरे मेरे भाई सुनिए ना, आपकी तकरीर में दिल लगा के सुना ना, फिर आप जवाब नहीं लेंगे क्या? जवाब नहीं लेंगे आप आलिम हैं? नहीं भाई, अब ये शर्त कहीं को लगा रहे आप आलिम है? पहले तो आप फोन करें जब तो शर्त नहीं लगाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूँ कि मैं आलिम हूँ, मेरे सामने ये अरे भाई पढ़ कर आया हूँ ना, तो हम भी पढ़ रहे, बल्कि तो आपको समझा रहे हो ना, आप पढ़े, आप मुझे समझा रहे हो। पढ़ रहे, जी 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 आप पढ़े, मगर क्या आप समझ रहे नहीं? बिल्कुल। जो देखिए अब मेरी बात सुनिए, जुम्बी सूरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज पढ़ा रहे फजर की, अल्लाह के रसूल के साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे, आप पे खिरत भारी हो गई। आप मसला सुनिए, आप घुमा रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह के रसूल देखिए, आप थोड़ा सबर करिए, आप कैसा घुमा रहे मैं आपको बता दूं ना साहब। अरे अल्लाह के रसूल की बात को आप अपनी बात से जो तावील कर रहे, उसूल अल्लाह के बंदे, मैं तावील नहीं कर रहा, मैंने दोनों, अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, अल्लाह के बंदे का मैंने, अरे तुरे पे नहीं, अल्लाह के बंदे कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छी बात है। सुनो घुमा नहीं रहा हूँ। देखिए आप मेरी बात हो जाने दीजिए मुकम्मल, मैंने आपकी बात मुकम्मल सुनी। आप 2 मिनट नहीं, मेरी बारी है। आपके हदीसों की जो आपने डिफिशन बताई, मेरी भी जिम्मेदारी है आप मेरी बात सुनना, ताकि हमारी बात मुकम्मल हो सके। शेख मोहतरम, अभी कैसा हुआ बोले तो प्यारे रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे, तो बाद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरत कर रहे हैं, आपके ऊपर खिरत भारी हो गई। या खिरत का जिक्र है, खिरत भारी हो गई आपके ऊपर। आपने कहा कि तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो, खिरत करते हो। साहबा ने कहा हाँ। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा रोका। अब यहाँ पे क्या बोले कि तुम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया सूरह फातिहा पढ़ो, और बाकी जो खिरत जो आप जो लिखा रहे कि इमाम की जो खिरत मुक्तदी के लिए काफी है, वो जुम्बी सुरों के मुतालिक है। सूरह फातिहा हर जो जुम्बी सुरा जो दीगर आप जो भी पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद की, अरे मेरे भाई सूरह फातिहा के बाद जो एक्स्ट्रा और सूरत पढ़ते हैं ना, ज़म्मे बोलो ज़म्मे। अब ठीक है साहब, अब अभी ग्रामर मत पकड़ो आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मेरे को आप मुझे ये बताइए, आप देखिए साहब, आप लोगों से ये परेशानी है, आप अल्लाह के रसूल की बात को भी ऐसा ये करते। मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को बताया, मेरे भाई अल्लाह के रसूल वाज़े बोल रहे, और आप उसमें जो सो खास आम कर रहे, वो इधर कुरियल कुरान में भी ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं आप बिल्कुल जो सो उसूल कड़की के उसूलों से आप काम कर रहे। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह के रसूल पे खिरत भारी होगी। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को बोला, क्या बोला कि आपने जो सो मेरे साथियों सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, इसके बाद तुम खामोश हो जाओ, ठीक है ना? तो आप बोल रहे कि नहीं जी उन्हें पूरा इजाजत है उसकी,
किसकी इजाजत है उसकी? किसकी अगर इजाजत? कोई आदमी खामोशी के साथ सूर्य फातिहा अगर पीछे पढ़ लेता तो उसकी इजाजत है। अरे अंगार के ढेले कब भरे जाएंगे फिर मुंह में? पूरे हनफियों को तो ये जनाजे की नमाज ऐसे उठा दे रहे, जनाजे की नमाज में सूर्य फातिहा नहीं अरे है। भाई जनाजे की नमाज का मसला अलग है ना। क्यों अलग है? वो क्या नमाज नहीं जनाजे है? की नमाज, नहीं, नमाज नहीं है। जनाजे की नमाज अल्लाह का के रसूल मसला का अलग हुक्म है। पूरा आम है ना भाई, ला सलाता, आप ला का मसाइल में मतलब क्या घूम है? रहे हो। मसाइल में नहीं भाई, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप उसूले एक कड़की के उसूले में कड़की चाहिए। से ये क्या उसूले उसूले कड़की कड़की में नहीं से? नहीं, ये उसूले कड़की के उसूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अरे जिसके भाई आप दिफा पहले कर आप रहे। उसूले करफी तो समझ ले, हर अरे वो मेरे आयत वाला भाई, मसला उसूले तो हल करकी करो। को आप समझे बोल के तो ये इतने सारे तावीलात कर रहे हैं आप एक मसले पे, जब वाजे प्यार रसूल का वाजे हुक्म है कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं, उसमें आप कितनी तावीलें कर रहे हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या खिरत का मसला सूरह फातिहा से मिल जाता? सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान नहीं कहा गया, उसके कितने नाम है? क्या उसमें ये जो खिरत है इसका मसले में ये आती है? अच्छा कहाँ पढ़े तो है इस्तेमा के, जब कुरान पढ़े तो खामोश रहो, उसमें तो कुछ भी हुक्म नहीं है। इसमें तो नमाज के साथ लफ्जों के साथ हुक्म है। फिर जनाजे की नमाज है तो आप उसको, उसमें तो आप सूरह फातिहा को खाई गए, इमाम भी खा गए, मुक्तदी भी खा गए, ऐसे ही मुर्दों को दफन कर दे रहे। क्या जनाजा नमाज नहीं है शेख साहब? ओ बोल रहे, अरे बोलिए शेख साहब, जनाजे की नमाज है कि नहीं? जनाजे की नहीं, मेरा बस यही सवाल है, अब जनाजे की नमाज है कि नहीं है? वो दुआ है, वो मैयत के लिए दुआ है। फिर सलाम फेरते कि नहीं फेरते उसमें? हाँ सलाम भी फेरते हैं, रुकू सजदा करते हैं क्या? नहीं, रकात बनते कि नहीं? नहीं रुकू सजदा करते हैं क्या? फिर बोलो ना। जनाजे की नमाज नहीं है क्या? नियत कैसा नहीं, बनते? जनाजे की नमाज में रुकू सजदा करते हैं अरे क्या? मेरे भाई, अत्तहियात नियत पढ़ते हैं कैसा क्या? बनते? अत्तहियात नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होती। हाँ, अरे तो उसका फिर वो तरीका मुकम्मल वही आप नमाज बताए, नहीं होती। अल्लाह के रसूल वही बताए कि ये जनाजे की नमाज है। देखो नमाज है, दुआ बोल रहे हैं आप। मसाइल पे गुफ्तगू करने से बेहतर हम नहीं, मैं एक ही मसले पे उसूले कड़की का आप कैसा दिफा करते वो मैं उसकी अमल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। उसूले कड़की का आप बात ही नहीं कर रहे हो। उसूले कड़की की जो इबारत पे दिफा करते वही बता रहा हूँ मैं। अभी देखो, हर वो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है उसमें तावील कर रहे हैं आप, कुरान की आयत को मनसूख करते वही। नहीं भाई रटी, आपको मैं पार्टिकल्स बात कर रहा हूँ, आप मुझे अच्छा चलिए साबित करिए जनाजे की नमाज नहीं है बोल के, कैसी नियत बनती है उसकी? अच्छा उसकी नियत कैसी करते? क्यों भाई, क्यों भाग रहे आप उसूले कड़की के उसूलों से क्यों भाग जा रहे हैं आप हदीस में तावील करके बताइए ना मेरे भाई हुज़ैफा भाई। ये जो जनाजे की नमाज नहीं मैं हल करूँ कि जरा अरे मेरे हल करूँ? भाई अभी तो जितने हल कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये जनाजे की नमाज है कि नहीं है, जिसमें तुम्हारा इमाम भी सूरह फातिहा खा लिया, मुक्तदी भी सूरह फातिहा खा लिए, कहीं को ऐसा बगैर फातिहा के लोगों के जनाजे पढ़ते रहे आप। बोल दीजिए कि आप नमाज जनाजे पर बात करेंगे सिर्फ, मैं मसला मुझे बता दीजिए। चलिए जनाजे की नमाज पे बात करेंगे, आ जाइए। उसके अलावा और कोई और नमाज पे नहीं? अभी तो कर लिया ना, इतने तो कर लिया ना आप, इसमें तो अभी देख लिया ना आपके तावीलात, इसमें कैसा घुमाते हैं? अरे अच्छा ठीक है हुज़ैफा भाई, अच्छा हुज़ैफा भाई आपको टाइम कब रखता, फ्री कब रखते? मैं तो अभी थोड़ा बिजी हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं असल में क्या है, मैं थोड़ा मेरा ये शाम का थोड़ा मशगूलियत का टाइम है, फिर भी आप करें, आपका दिल रखना चाहिए, आप हमारे भाई है बोल के मैं आपसे बात कर लिया, लेकिन बहुत खुशी हुई आपसे बात करके माशाअल्लाह। कब बात करना आपसे? ठीक है, नहीं मैं आपसे सूरह फातिहा, तकलीफ, ये कोई से भी मौजू पे बात करेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तरीका यही है कि जैसा आप उसूल कड़की की जो इबारत से है कि हदीसों में तावील करेंगे, जैसा वो इमाम की खिरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है, इदा क़रिअल कुरान, और जैसा ये करे ना इसमें, मगर कि सब में भारी रसूल का वही अमल होगा जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को बताया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सबसे बेहतरीन बात अल्लाह के रसूल की बात है। देखिए सूरह मोहम्मद की आयत नंबर भूल गया, रात में पढ़ा 33 नंबर आयत होंगी, 47 पार्टी नंबर, अल्लाह के रसूल के मुतालिक ये कहा गया कि इनकी मुखालफत करके अपने अमाल को ज़ाया बर्बाद मत करो। मातकुम मिर रसूल फखुज़ू, अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहल किताब। लेकिन ये भी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला सलात मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुहु लहु। खिरात है साहब, ये सूरह फातिहा नाम मुझे लेके बताओ, बताया, सूरह फातिहा अलग है, इसको उम्मुल कुरान, इसके बहुत नाम है, उम्मुल कुरान है इसके नाम। भाई अल्लाह के रसूल की बात इताअत करो, भाई इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ताला सूरह नूर में देखिए मौलवी साहब, अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमा रहे हैं जो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफत करते हैं कोई फितने में पड़ जाएंगे उन्होंने। चलो नहीं अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तुम मेरे को टाइम देके मेरे को बात करो, मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ। रात में आपका फ्री होते तुम तकलीद के मसले बात करेंगे मौलवी साहब, असल जड़ तकलीद है फिक़ह हनफी।
ٹھیک ہے، اب سارے مسائل ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دے، صرف تقلید صرف پہ بات تقلید پہ کریں گے بات انشاءاللہ. آپ کی تقلید نکل گئی تو سب سمجھ میں آتا، میں نہیں تو میں مخلص بن گیا تو سب مجھے سمجھ میں آتا. تو زوم پر کر لیتے، نہیں یہ اسی کال پہ گوگل کریں پر. گے، یہ سب میرے سے نہیں ہوتا صاحب. آپ زوم پہ کرے تو میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ زوم کے بعد میں، کیوں تو زوم کے تھوڑا الگ رہتے ہیں بات کرنے والے کیا میں، رہتے اس ہیں؟ میں کیا ہے بول تو تھوڑا اسپیڈ رہنا پڑتا. نہیں ٹھیک کیا ہے نا، ابھی میرے پاس میں ابھی کیا تک کرا نہیں مواد ہے، میں. دیکھو ہاں کوئی بات نہیں نا، میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ سب پہ، ٹھیک ہے. جی جی. لیکن اب جیسے میں نے ابھی آپ نے جو پیج بھیجا نا مجھے سولے کرفی کا، میرے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن اچھا آپ کے اچھا سامنے کھلا ہوا نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کا اسکرین شیئر کر دوں اور یہ عبارت جو ہم دیکھو بہت سارے دلائل میں آپ میرے کو ٹائم دے دیے شام کا، تھوڑا کیا ہے مشغول دیکھو ہوں. میرے پاس ہے نا، میں بھی بہت مشغول آدمی ہوں، ہاں مجھے ہاں تو بالکل وقت شام نہیں ہے. میں لے لیں گے کیا، یہ مجھے ٹائم تھوڑا بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ امامت اچھی کرنی بات ہوتی ہے، میں گرافک ڈیزائنر ہوں. یہ جتنی پوسٹیں بنائی جاتی ہے نا، جی میں جی چاہوں تو دن رات بیٹھ کے روز پوسٹیں بنا سکتا ہوں، ایڈٹ کر بنائیے سکتا ہوں، بنائیے. لیکن کیا فائدہ؟ اچھا کیا یہ فائدہ؟ کام کریں گے، رات میں 9 بجے کے بعد کر لو. نہیں میرے کو وقت نہیں ملے گا ابھی. 10 بجے کے بعد، نہیں تو صبح کا کل کا کچھ تو بھی ٹائم کوئی میں آپ کو فکس نہیں بول سکتا، مجھے میرے پاس میں کہہ رہا ہوں فکس نا، بولے تو میرے کیا پاس ہے، میں بھی اپنی مشغولیات میں سے نکال لیتا ہوں صاحب ٹائم. بھائی اب نہیں نکلتا ہے کیونکہ ان سب باتوں کا کوئی نہیں نتیجہ نکالیں نہیں ہے. گے، بات کریں گے. چلو جس کو ٹائم ہوا اپن فون کر کے کیسا تو بھی ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں کیسی بات ہوگی، جیسے آپ نے اصول کرخی کا پیج میرے کو بھیجا، اب میں نے آپ کو وہی صاحب پوچھا کہ یہ بھائی دیکھیے میں اس پہ ہی آپ دیکھو سے اتنی گفتگو دیر کا اپن طریقہ اصول یہ ہوتا ہے، دیکھیے